बराह रास्त आपको ले चलेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। What message does this send to average Americans, especially those who may be struggling right now financially? I don't get involved in my personal. We have funds that run my money. But you are benefiting. I mean, we're talking. Well, I've made a lot of money before I became president, and they invest my money, and I don't talk to them. I don't even speak to them. So I have many people. I don't know what they call it, closed accounts or something. You put your money in, and that's it. I don't talk to them. They're big institutions, and they run it. But yeah, I've had a great career in business. I've had a great career. Concerns about conflict of interest? I don't know if I've had a critics? better career in politics or business, but I had a great career in business. And you saw the cash, and you report the different things. And what they do is we gave it. I think it's called a blind account, but they take it. And I never speak to any of the people that run the money, but they're at big institutions, and they invest in whatever they invest. But to critics who say you're profiting off the presidency, Mr. Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting. If you have a 401k, how's your 401k done? It's about up 85%. Thank you, President Trump. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash, and I give it to institutions. I don't know if they know what they're doing or not, but they buy a vast array of things. President Trump, you've been meeting with Secretary Hegseth and General Kane about potentially returning to an all-out war with Iran. Does this mean you've been unhappy with Iran's adherence to the MOU? Well, I think they've come a long way. We hit them very hard last week. I think they're fine. I think we're going to... It's the denuclearization of Iran. It's very simple. And Iran cannot have a nuclear weapon. Otherwise, all of this stuff that we look at, all of these things that we do, the country's never had activity like it's got right now. So we're building more factories and car plants and other things. We went for years without ever building one car plant. Now we're building many car plants. We're building AI. We're building all over the country. $19.1 trillion being invested. The record was like 2, and we've got 19.1, and it's going to continue. And when those buildings open, you're going to see something like the country's never seen before. That's why the stock market's going up every day. That's why your 401k, because everybody benefits. When the stock market goes up, everybody benefits. More jobs, more everything. And we're creating more jobs. We have more people working today than have ever worked in the history of our country. It's great. And that's before these places open. They'll be opening up over the next year. And we have them coming into Taiwan. From Taiwan, we have more chip makers. And the biggest company in the world, actually, the chip maker. But they're coming in, they're building in Arizona, and they just announced they're going to double the size. We could have 50% of the chip market by the time I leave office. You know what we had now? Nothing. And then I got, as a gift, another gift, I said to Intel, give the United States, they needed something, they needed some help, the chip maker. I said, give the United States of America, I'll do it for you, but give the United States of America 10% of your company. He said, you have a deal. He said it so fast, I said I should have asked for more. But he said, you have a deal. And that stake is now worth $80 billion. I made $80 billion for the country in 8 months. Does anybody talk about it? No. Have a good time. Have a good flight. Enjoy the plane. Mr. President, real quick question. You've got D&I Pulte over there as the new director. We also know you have the task force set up on declassification, maybe talking about international, maybe looking at some declassification. Are you able to give us an update on that? Declassify almost everything. And you know, by the way, we have Jay Clayton who's going in. You know, Bill Pulte's a very talented guy, but he's just there temporarily. अभी आपको खबर देंगे कि रावलपिंडी में पुलिस की तहवील से फरार होने वाले हवालातियों में से 3 खतरनाक मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की खुसूसी टीम ने मुल्जिमान को कहूटा के करीबी इलाके से टारगेटेड सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हकीम ने हमें ज्वाइन किया है। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। देखें, बिल्कुल 2 दिन से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी था और गुज़िश्ता रोज जिन टारगेटेड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया था, आज उसमें मजीद तेजी लाई गई थी और रावलपिंडी से 6
ऑपरेशंस के माहिर पुलिस अफसरान को इन मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए कोटा भिजवाया गया था और इसी टारगेटेड सर्च ऑपरेशन के दौरान कोटा के करीबी जंगल और मुख्तलिफ इलाकों से इन 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके हवाले से यह बताया गया कि तीनों कत्ल के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे और ये कैदी वैन से फरार हुए थे 2 दिन कबल, जब उन्हें कोटा में अदालत में पेशी के बाद वापस अडेला ले जाया जा रहा था। इन गिरफ्तार मुल्जमान में अदील शाह, जैगम और एहतशाम शामिल है, जिन्हें आपसे कुछ देर बाद इस्लामाबाद के थाना सैला की पुलिस में के हवाले किया जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया। और विफाकी दारुल हुकूमत में मौसम ने करवट ले ली। आसमान पर काले बादलों के डेरे, तेज हवाओं का राज है, शहरियों को बारिश का इंतजार। महकमा मौसमियात की आज से 6 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद है हमारी नुमाइंदा अलीना शाहिद। अलीना बताएगा क्या मनाजिर हैं। देखिए महक, इस वक्त अगर मैं सिचुएशन बताऊं तो यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो गया है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं और गर्मी के सताए इस्लामाबाद के शहरी बेहद खुश हैं, क्योंकि इस्लामाबाद इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। काले बादल छा चुके हैं, इस वक्त बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से 6 जुलाई तक बारिश की पेशगोई की गई थी। मानसून की बारिशों का आगाज़ जो है वो आज से हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। अगर मैं आपको यहाँ की सिचुएशन बताऊँ तो इस वक्त अगर यहाँ पर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो बैकग्राउंड पे बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। और इस्लामाबाद वैसे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन बारिश में और इस तरह के मौसम में और भी खूबसूरत मंजर जो है वो पेश करता है। और स्पेशली जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो इस मौसम का इंतज़ार करते हैं और उनका कहना है कि इतनी शदीद गर्मी थी इस्लामाबाद में गुज़श्ता कुछ दिनों में कि ऐसे मौसम का ही इंतज़ार था। तो भरपूर तरीके से इस मौसम को एंजॉय करने के लिए जो इस्लामाबाद के शहरी हैं। अलीना, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। अभी आपको खबर देंगे कि रावलपिंडी में पुलिस की तहवील से फरार होने वाले हवालातियों में से 3 खतरनाक मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की खुसूसी टीम ने मुल्जिमान को कहूटा के करीबी इलाके से टारगेटेड सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हकीम ने हमें ज्वाइन किया है। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। देखें, बिल्कुल 2 दिन से मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी था और गुज़श्ता रोज जिन टारगेट सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया था, आज उसमें मजीद तेजी लाई गई थी और रावलपिंडी से 6 ऑपरेशंस के माहिर पुलिस अफसरान को इन मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए कोटा भिजवाया गया था और इसी टारगेटेड सर्च ऑपरेशन के दौरान कोटा के करीबी जंगल और मुख्तलिफ इलाकों से इन 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके हवाले से यह बताया गया कि तीनों कत्ल के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे और ये कैदी वैन से फरार हुए थे 2 दिन कबल, जब उन्हें कोटा में अदालत में पेशी के बाद वापस अडेला ले जाया जा रहा था। इन गिरफ्तार मुल्जमान में अदील शाह, जैगम और एहतशाम शामिल है, जिन्हें आपसे कुछ देर बाद इस्लामाबाद के थाना सैला की पुलिस में के हवाले किया जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया। और विफाकी दारुल हुकूमत में मौसम ने करवट ले ली। आसमान पर काले बादलों के डेरे, तेज हवाओं का राज है, शहरियों को बारिश का इंतजार। महकमा मौसमियात की आज से 6 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद है हमारी नुमाइंदा अलीना शाहिद। अलीना बताएगा क्या मनाजिर हैं। देखिए महक, इस वक्त अगर मैं सिचुएशन बताऊं तो यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो गया है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं और गर्मी के सताए इस्लामाबाद के शहरी बेहद खुश हैं, क्योंकि इस्लामाबाद इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। काले बादल छा चुके हैं, इस वक्त बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से 6 जुलाई तक बारिश की पेशगोई की गई थी। मानसून की बारिशों का आगाज़ जो है वो आज से हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। अगर मैं आपको यहाँ की सिचुएशन बताऊँ तो इस वक्त अगर यहाँ पर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो बैकग्राउंड पे बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। और इस्लामाबाद वैसे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन बारिश में और इस तरह के मौसम में और भी खूबसूरत मंजर जो है वो पेश करता है। और स्पेशली जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो इस मौसम का इंतज़ार करते हैं और उनका कहना है कि इतनी शदीद गर्मी थी इस्लामाबाद में गुज़श्ता कुछ दिनों में कि ऐसे मौसम का ही इंतज़ार था। तो भरपूर तरीके से इस मौसम को एंजॉय करने के लिए जो इस्लामाबाद के शहरी हैं। अलीना, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया।